Dear students, in this video lecture, I am going to discuss numerical questions on long transmission lines and then we will discuss Ferranti effect. So let us see the first question. It is given that a single circuit 3-phase 50 Hz transmission line has the following parameters per kilometer. That is, parameters per kilometer are given. Given that resistance is equal to 0.2 ohm per kilometer, inductance is equal to 1.3 millihenry per kilometer and capacitance is equal to 0.01 microfarad per kilometer. Next, it is written that receiving end voltage is 132 kilovolt. So according to the question, it is given that resistance equal to 0.2 ohm per kilometer, L is equal to 1.3 millihenry and C is equal to 0.01 microfarad. So next, it is given that receiving end voltage is 132 kilovolt. So receiving end voltage is 132 kilovolt. It means the line voltage is given via line. It is given as 132 kilovolt. So when I am converting it to phase, so VR phase will be what? It will be divided by root 3. So 132 divided by root 3 kilovolt. So from here we will calculate the value of VR. So here it will be equal to 36.1 kilovolt. So this will be the value of receiving in voltage in phase. Next, it is given that if the line is open at receiving end, it is also given that the line is open at receiving end. The line is open, it means receiving end current will be equal to 0. Next, then we have to find the RMS value and phase angle of following quantities. पहला दिया गया है, we have to find the RMS value of incident voltage to neutral at the receiving end. Second, we have to find the reflected voltage to neutral at receiving end. तो हम लोग इस चीज को समझते हैं कि इंसिडेंट वोल्टेज और रिफ्लेक्टेड वोल्टेज क्या होता है. तो जब हम लोग एक्सप्रेशन वोल्टेज का ऑब्टेन किए थे, तो वोल्टेज का हमें एक्सप्रेशन मिला था, द वैल्यू ऑफ वोल्टेज V एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम द रिसीविंग एंड इज इक्वल टू VR प्लस IR ZC डिवाइडेड बाय 2 into e to the power gamma x plus VR minus IR into ZC divided by 2 into e to the power minus gamma x. Now the first part of this voltage is your incident voltage. This is the incident voltage. Second, this voltage is called reflected voltage. So we have to find incident voltage and reflected voltage by using this formula. So again, to find the incident voltage, we'll have to know the value of characteristic impedance ZC. We'll have to know the value of gamma. So let us find the values of ZC and gamma. So first, what we'll have to find, here it is given R and L and C is given to us. So we'll have to find the impedance per unit length, that is small z. So small z will be equal to R plus jx. So 0.2 plus j x is nothing but omega into L. 50 Hz is given, that means j into 314.16 into 1.3 millihenry. It means 1.3 into 10 to the power minus 3. So from here the value of R plus jx, that means z is coming, it is equal to 0.454 at the angle 63.88 degree. This is the value of z. Now next we have to find the value of y, that means shunt admittance per kilometer. So it is nothing but equal to j omega c. So from here the value of y is 3.14 into 10 to the power minus 6 microfarad. So we got the value of z and y. So next we have to find the value of characteristic impedance ZC. So ZC is equal to z divided by y. तो यहां पर हम लोग z और y का वैल्यू अगर पुट करें, तो यहां देखिए ये वैल्यू हमें मिलेगा 0.454 at the angle 63.88 degree divided by
यहां पर y जो मिला था ये हमें मिला था y एट एंगल 90 डिग्री पर ओम में मिला था। तो यहां पर y की वैल्यू लिखेंगे 3.14 इंटू 10 टू द पावर -6 एट एंगल 90 डिग्री। तो ध्यान रखिए जब मैग्नीट्यूड को अंडर रूट करेंगे तो यहां पर जो एंगल होगा, एंगल भी क्या होता है अंडर रूट में 63.88 माइनस 90 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। जब हम एंगल को स्क्वायर करेंगे तो एंगल 2 से मल्टीप्लाई हो जाता है, और जब एंगल को अंडर रूट करेंगे तो एंगल विल बी डिवाइडेड बाय 2। तो फ्रॉम हियर विल गेट इट इज इक्वल टू 380.24 एट द एंगल माइनस 13.06 degree. This is the value of ZC, that is characteristic impedance. So next we have to find propagation constant gamma. So gamma is equal to under root y into z. तो जब हम लोग y और z दोनों का कॉम्प्लेक्स वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे और हमें उसे कॉम्प्लेक्स कैलकुलेटर पर कैलकुलेट करेंगे तो यहां से हमें मिलेगा गामा विल बी इक्वल टू 0.27 प्लस j 1.16 into 10 to the power minus 3. So this is the value of alpha, this is the value of j beta. That means we got alpha plus j beta. So next come to first question, that is the at receiving end it is given IR equal to 0. Next we have to find this term, that means VR plus IR ZC. Now ZC is known to you, gamma is known to you, we have to find the value of this part. So again to find this part, what will we write? Incident voltage will be equal to VR plus IR into ZC upon 2 into e to the power gamma x. तो जब हम रिसीविंग एंड की बात करते हैं तो एट रिसीविंग एंड क्या होता है, x विल बी इक्वल टू 0 और IR ऑलरेडी 0 हमें दिया गया है क्वेश्चन में ही, IR इज ऑलरेडी गिवन टू यू 0. इट मींस द वैल्यू ऑफ इंसिडेंट वोल्टेज विल बी सिंपली दिस वैल्यू विल बी 76.21 kilovolt, 76.21 kV plus this term is 0 divided by 2 into e to the power gamma x is equal to 0. From here the value is incident voltage is coming, it is equal to 38.105 kilovolt. This is the answer of first question. Next come to second question. Second question they are asking you reflected voltage, और वोल्टेज, और यहां पर ध्यान रखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है विथ रिस्पेक्ट टू न्यूट्रल, रिफ्लेक्टेड वोल्टेज टू न्यूट्रल फाइंड करना है और इंसिडेंट वोल्टेज टू न्यूट्रल फाइंड करना है. न्यूट्रल फाइंड करने का मतलब क्या है कि हम ऑलरेडी वहां पर हम लोग रिसीविंग परफेक्ट वोल्टेज लेकर ही कैलकुलेट कर रहे हैं. हियर इट विल बी इक्वल टू व्हाट, रिफ्लेक्टेड वोल्टेज विल बी इक्वल टू VR minus IR into ZC divided by 2 into e to the power minus gamma x. So again we will put x equal to 0, IR equal to 0. Again it will be 76.21 kilovolt minus 0 divided by 2 into e to the power 0. So again it will be equal to 38.105 kilovolt. Again it will be 38.105 kilovolt. Here it was coming actually 76.21 kilovolt. Now come to third question. Next come to third question. Third question they are asking you to find the receiving in voltage and reflected voltage to neutral at 120 kilometer from the receiving end. In the third question they have given you the value of x. X is equal to 120 kilometer. So when x is given to you 120 kilometer, that means this time you will have to calculate e to the power gamma x and you will have to calculate e to the power minus gamma x. So first let us calculate e to the power gamma x.
तो e टू द पावर गामा x अगर हम कैलकुलेट करें सो विल हैव टू राइट e टू द पावर अल्फा प्लस j बीटा into x. So here we can write e to the power alpha x into e to the power j beta x. अब हम लोग यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, यहां से मिलेगा e to the power gamma x will be equal to अल्फा का वैल्यू हमें मिल चुका था, अल्फा हमें दिया हुआ है 0.27, so e to the power 0.27 into x is equal to 120 किलोमीटर। और यहां पर आपको ध्यान रखें, यहां पर 0.27 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 है, तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे इंटू 10 टू पावर माइनस 3 करेंगे। दिस इज द वैल्यू ऑफ e टू द पावर अल्फा इंटू x। सिमिलरली e टू द पावर बीटा x, e टू द पावर j बीटा x जब हम कैलकुलेट करेंगे e टू द पावर j बीटा द वैल्यू इज 1.16 into 10 to the power minus 3 into 120. So this is the value of e to the power alpha और ये है e to the power j beta। तो e to the power alpha अगर हम लोग देखें यहाँ पर, so we are getting e to the power alpha x is equal to 1.033, this value is 1.033 into e to the power j beta x की अगर हम वैल्यू देखें तो e to the power j beta x हमें आ रहा है 0.99 एट द एंगल 8.03 डिग्री। अब देखिए हम लोग e टू दी पावर अल्फा तो हमने कैलकुलेट कर लिया आराम से, क्योंकि ये रियल टर्म था और यहाँ पर इमेजिनरी टर्म दिया गया है। तो इमेजिनरी टर्म का कैलकुलेशन हुआ कैसे? इमेजिनरी टर्म का कैलकुलेशन हुआ बाय यूजिंग यूलर्स फॉर्मूला। इफ e टू दी पावर j थीटा इज गिवन सो यू कैन राइट इट cos थीटा प्लस j sin थीटा, cos थीटा प्लस j sin थीटा। तो यहां पर हमने इस वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया और यही हमारा क्या हो गया था थीटा। लेकिन यहां जो थीटा हुआ था ये थीटा हमारा रेडियन में मिला था, तो यहां जो हमने पुट किया था यहाँ पर cos थीटा प्लस j थीटा, इस वैल्यू को ऑब्टेन करने के लिए यहाँ पर थीटा हमने रेडियन में पुट किया था, तो वहां से cos थीटा प्लस j sin थीटा का टर्म आया था और वो टर्म जो था वो हमारा इक्वल टू था, यानी थीटा हमारा आया था 0.14028 रेडियन। थीटा जो था हमारा वो था 0.14028 रेडियन। थीटा हमने रेडियन पुट किया था, तो यहां से फिर कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी को फिर से हम आर्क एट द एंगल थीटा में कन्वर्ट किए, तो वहां से हमें एंगल मिला है 8.03 डिग्री। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ e टू द पावर गामा x। तो e टू द पावर गामा x की जब हमें वैल्यू मिल चुकी है तो हम लोग क्या करेंगे, यहां से हम लोग इंसिडेंट वोल्टेज हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर इंसिडेंट वोल्टेज ये टर्म हमारा क्या होगा VR प्लस IR इंटू ZC/2। अगेन द टर्म विल बी VR प्लस IR इंटू ZC/2 होगा। तो VR प्लस IR इंटू ZC क्या है 0 है, तो यानी हम ये वैल्यू लिख देते हैं 38.105 kV इंटू 1.033 इंटू 0.99 at the angle 8.03 degree. So from here the value of incident voltage is 38.97 at the angle 38 point. From here the value is 38.97 at the angle 8.03 degree kilo volt. This is the answer of first that means incident voltage at an angle of at a distance of 120 kilometer from the receiving end. दूसरा हम लोग कैलकुलेट करते हैं रिफ्लेक्टेड वोल्टेज एट एंगल ऑफ नेक्स्ट एट ए डिस्टेंस ऑफ 120 किलोमीटर फ्रॉम द रिसीविंग एंड। तो रिफ्लेक्टेड वोल्टेज को जब हम कैलकुलेट करेंगे, रिफ्लेक्टेड वोल्टेज एट 120 किलोमीटर फ्रॉम रिसीविंग एंड। तो यहां पर क्या होगा, रिफ्लेक्टेड वोल्टेज में हमारा जो टर्म आता है वो टर्म आता है VR माइनस IR ZC/2 इंटू e टू द पावर माइनस गामा x इंटू e टू द पावर माइनस गामा x। तो वी विल हैव टू कैलकुलेट e टू द पावर माइनस गामा x। तो इसे क्या लिखेंगे, e टू द पावर माइनस अल्फा x इंटू e टू द पावर माइनस j बीटा
x, और x की वैल्यू क्या है, x इज इक्वल टू 120 किलोमीटर, तो यहां पर सिंपली 120 रखेंगे। अल्फा की वैल्यू हम लोग यहां पर अल्फा और बीटा की वैल्यू दी गई है ये रखेंगे। तो यहां पर देखिए जो टर्म आएगा यहां पर हमें वैल्यू मिल रहा है, ये वैल्यू हमें मिल रहा है 0.9681 e टू द पावर माइनस अल्फा एक्स की वैल्यू है इंटू 0.99 एट द एंगल, यहां पर देखिए एंगल सिर्फ रिवर्स हो जाएगा यानी निगेटिव एंगल हो जाएगा -8.03 डिग्री। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, रिफ्लेक्टेड वोल्टेज अगर हम लिखें, रिफ्लेक्टेड वोल्टेज, तो रिफ्लेक्टेड वोल्टेज विल बी इक्वल टू अगेन 38.105 kV into 0.9681 into 0.99 at the angle -8.03 degree. So from here you see that reflected voltage is 36.52 at the angle -8.03 degree kilovolt. So this is the solution of first question. So this is the solution of first question. ये सारे पार्ट्स का सॉल्यूशन हमें मिल गया। तो यहां पर आप देखेंगे कि जो हमें एट डिस्टेंस ऑफ 120 किलोमीटर लिए, तो वो कहीं कहीं हमारा अगर रिसीविंग एंड है, सेंडिंग एंड है, तो आप देखेंगे वहां पर चेक करेंगे कि जब आप रिफ्लेक्टेड वोल्टेज और इंसिडेंट वोल्टेज दोनों को सम करेंगे, नो लोड रिफ्लेक्टेड वोल्टेज IR इक्वल टू 0 का कंडीशन दिया गया है, तो उस केस में अगर रिफ्लेक्टेड वोल्टेज और इंसिडेंस वोल्टेज का सम करेंगे, सो दैट सम विल बी लेस देन द रिसीविंग इन वोल्टेज। सो बेसिकली दैट इफेक्ट इज कॉल्ड फेरेंटी इफेक्ट, व्हिच आई विल एक्सप्लेन हियर इन दिस वीडियो लेक्चर। सो फेरेंटी इफेक्ट, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमें मिल चुका है। नेक्स्ट कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए यहां पर क्या दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा चेंज किया गया है और आपको सॉल्यूशन पता करना है। स्मॉल चेंजेस मेड इन द क्वेश्चन एंड यू हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन। बेसिकली अभी जो हमने सॉल्यूशन किया था, ऑब्टेन किया था, दैट वाज फॉर नो लोड कंडीशन। अब इसमें एक लोड कनेक्ट किया गया है और वहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि फिर से इंसिडेंट वोल्टेज और रिफ्लेक्टेड वोल्टेज कैलकुलेट करिए। दिया गया है, यहीं पे दूसरा क्वेश्चन जो ऐड किया गया है, डिटरमाइन द एफिशिएंसी ऑफ द लाइन, डिटरमाइन द एफिशिएंसी ऑफ लाइन इफ line is 120 kilometer long, 120 kilometer long, if the line is 120 kilometer long and delivers 40 megawatt and delivers 40 megawatt at 132 kilovolt and 0.8 पावर फैक्टर लैग, यानी उसी क्वेश्चन में हमें दिया गया है। अब यहां पर एक लोड दिया गया है जो कि रिसीविंग एंड में कनेक्ट है और हमें एफिशिएंसी ऑफ द लाइन कैलकुलेट करना है, और जो लाइन क्या है 120 किलोमीटर लॉन्ग है और वो पावर डिलीवर कर रहा है 40 मेगावाट एट 132 किलोवोल्ट, 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग। तो सबसे पहला क्या है, हमें जब पावर दिया गया है, रिसीविंग इन वोल्टेज दिया गया है, 3 फेज लाइन है, तो फ्रॉम हियर वी कैन डायरेक्टली फाइंड द रिसीविंग इन करंट। इट विल बी इक्वल टू P divided by, that means 40 megawatt divided by √3 into 132 kilovolt, 132 into 10 to the power 3 into 0.8 एट द एंगल क्या होगा, cos इनवर्स 0.8, क्योंकि लैगिंग पावर फैक्टर दिया गया है। तो फ्रॉम हियर यू गेट द वैल्यू ऑफ करंट इज इक्वल टू 218.7 एम्पियर एट द एंगल -36.87 डिग्री। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ करंट। नाउ द करंट इज नोन टू यू। हमें आगे जो हमने कैलकुलेट किया था ZC, हमें ऑलरेडी पिछले क्वेश्चन में कैलकुलेट हमने किया था 380 एट द एंगल -13.06 डिग्री।
दूसरा e टू द पावर अल्फा एक्स इंटू e टू द पावर j बीटा x की जो वैल्यू थी e टू द पावर अल्फा एक्स इंटू e टू द पावर j बीटा x, क्योंकि ये अल्फा बीटा भी सेम रहा था, x इक्वल टू 120 किलोमीटर पर हमें मिला था 1.023 एट द एंगल 8.03 डिग्री या फिर 02 डिग्री। नेक्स्ट e टू द पावर माइनस अल्फा एक्स इंटू e टू द पावर माइनस j बीटा x जो हमने कैलकुलेट किया था, दैट वाज इक्वल टू 0.9584 एट द एंगल माइनस 8.02 डिग्री। ये सारी चीजें हमें पता थी। अब हम लोग क्या करना है, हमें इंसिडेंट वोल्टेज और रिफ्लेक्टेड वोल्टेज पहले पता करेंगे और वो दोनों का सम होगा, दैट सम विल बी रिसीविंग सेंडिंग इन वोल्टेज Vs। और जब सेंडिंग इन वोल्टेज हम पता कर लेंगे फिर हमें सेंडिंग इन करंट पता करना है। तो पहले हम लोग सेंडिंग इन वोल्टेज, क्योंकि हमें सेंडिंग इन पावर कैलकुलेट करना है, तभी हम एफिशिएंसी को बतला पाएंगे। तो सेंडिंग इन वोल्टेज को अगर हम कैलकुलेट करें तो देखिए सेंडिंग इन वोल्टेज क्या होता है। सेंडिंग इन वोल्टेज के लिए हमें दो टर्म्स अलग अलग आएंगे, एक Vs प्लस कैलकुलेट करना पड़ेगा जो कि इंसिडेंस वोल्टेज है, ये होगा Vr प्लस IR इंटू ZC डिवाइडेड बाय 2 इंटू e टू द पावर अल्फा एक्स इंटू e टू द पावर j बीटा x। तो यहां पर क्या करेंगे, वोल्टेज हमें दिया गया है 132 के भी यहां पर नहीं लेना है, यहां पर फिर से क्या करना पड़ेगा, फेज वोल्टेज लेना है। हम लोग क्या करेंगे, यहां पर फेज वोल्टेज कैलकुलेट करेंगे। जो हमारे ये वोल्टेज भी हम लेंगे, ये फेज वोल्टेज अब हमें कैलकुलेट करना है। तो फेज वोल्टेज क्या होगा, हमें 132 किलो वोल्ट का वोल्टेज दिया गया है, तो फेज वैल्यू इसका क्या होगा, VR फेज विल बी इक्वल टू 132 डिवाइडेड बाय √3, दैट मींस 76.21 किलो वोल्ट। तो हमें इस वैल्यू को लेकर चलना है, हम लिखेंगे 76.21 किलो वोल्ट प्लस IR, द वैल्यू ऑफ करंट इज। अब यहां पर देखिए चूंकि इसको किलो वोल्ट में लिया गया है तो दूसरा टर्म भी हमारा क्या होना चाहिए, किलो में आना चाहिए। यानी हम लोग क्या करेंगे, करंट को किलो एम्पियर में लिखेंगे, यानी 1000 से डिवाइड करके लिखें 0.2187 एट द एंगल माइनस 36.87 डिग्री इंटू ZC, द वैल्यू ऑफ ZC इज 380 इंटू 380 एट द एंगल माइनस 13.06 डिग्री, 13.06 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 इंटू e टू द पावर अल्फा एक्स इंटू e टू द पावर j बीटा x, इट्स वैल्यू इज 1.023 एट द एंगल 8.02 डिग्री। तो यहां से हमें क्या मिल रहा है, Vs पॉजिटिव फेज जो हमें मिल रहा है, Vs प्लस जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, दिस इज इक्वल टू 73.89, दिस इज इक्वल टू 73.89 एट द एंगल माइनस 18.1 डिग्री किलो वोल्ट, 73.89 एट द एंगल माइनस 18.1 डिग्री किलो वोल्ट इज द वैल्यू ऑफ Vs प्लस। सिमिलरली हम लोग रिफ्लेक्टेड वोल्टेज अगर हम कैलकुलेट करें Vs माइनस, तो Vs माइनस क्या होगा, Vs माइनस यहां पर फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे Vr माइनस IR ZC, और यहां पर दोनों माइनस का टर्म आ जाएगा। तो हम जब सारे वैल्यूज पुट करेंगे तो यहां से हमें मिल रहा है Vs माइनस इज इक्वल टू, फ्रॉम हियर Vs माइनस इज इक्वल टू 32.36 एट द एंगल 62.33 डिग्री किलो वोल्ट। तो हम लोग क्या करेंगे, नेट जो सेंडिंग इन वोल्टेज आएगा Vs प्लस प्लस Vs माइनस, तो ये दोनों टर्म्स को अगर हम ऐड करेंगे तो यहां से हमें मिल रहा है 85.45 एट द एंगल 3.83 डिग्री किलो वोल्ट, और ये क्या है, फेज वोल्टेज मिल गया। जब हमें फेज वोल्टेज मिल गया, सेंडिंग इन फेज वोल्टेज, नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करना है सेंडिंग इन फेज करंट IS। तो IS के फॉर्मूला में आप क्या देखते हो, IS का फॉर्मूला में बस थोड़ा सा चेंजेस आता है। जो पहला टर्म हमारा VR प्लस IR ZC है, डिवाइडेड बाय 2 इंटू ZC से डिवाइड हो जाता है, और सेकेंड टर्म निगेटिव हो जाता है और उसमें भी ZC से डिवाइड हो जाता है।
यानी हम ये फॉर्मूला लिख सकते हैं Vs प्लस डिवाइडेड बाय Zc माइनस Vs माइनस डिवाइडेड बाय Zc। यही फॉर्मूला यहां पर अप्लाई करना है। तो यानी Vs प्लस प्लस Vs माइनस डिवाइडेड बाय Zc हो गया। तो Vs प्लस हमें 73.89 एट द एंगल माइनस 18.1 डिग्री माइनस सेकेंड पार्ट हमारा है Vs माइनस इज 32.36 एट द एंगल 62.33 डिग्री डिवाइडेड बाय द वैल्यू ऑफ Zc इज गिवन एज Zc the value is 380 at the angle minus 13.06 degree. So from here the value of Is is coming, it is coming equal to 198.89 at the angle minus 29.21 degree. तो नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड द सेंडिंग इन पावर। तो सेंडिंग इन पावर यानी थ्री फेज पावर कैलकुलेट करना है। तो थ्री फेज पावर का फॉर्मूला होता है √3 VI cos phi। लेकिन यहां पर फेज वोल्टेज सेंडिंग इन फेज वोल्टेज दिया गया है, लाइन वोल्टेज नहीं बताया हमें, तो इसलिए पावर का फॉर्मूला क्या होगा PS, इट विल इक्वल टू 3 into VS IS cos phi s। 3 into VS IS cos phi s, क्योंकि जब आप फेज वोल्टेज को लाइन वोल्टेज में कन्वर्ट करोगे यू विल हैव टू मल्टीप्लाई बाय √3, तो √3 into √3 विल बिकम 3। सो दिस इज द थ्री फेज पावर। यहां पर देखिए phi s का टर्म सिर्फ हमें कैलकुलेट करना है। phi s इज द फेज डिफरेंस ऑफ सप्लाई सेंडिंग इन वोल्टेज एंड सेंडिंग इन करंट। तो सेंडिंग इन वोल्टेज का एंगल है 3.83 डिग्री और सेंडिंग इन करंट का एंगल है -29.21 डिग्री। तो फ्रॉम हियर अगर हम phi s को लिखें तो phi s इज कमिंग 33.04 डिग्री। तो जब हम यहां से PS कैलकुलेट करेंगे तो फ्रॉम हियर PS विल बी इक्वल टू 42.74 मेगावाट। PS is coming 42.74 megawatt. Hence, efficiency, if you have to calculate percentage efficiency of the line, it will be receiving in power divided by sending in power into 100. So it is equal to 40 megawatt divided by 42.74 megawatt into 100. So finally, we get the efficiency is equal to 93.58%. Efficiency is equal to 93.58% is the final answer. That means the final value of efficiency 93.58%. तो ये हमने यहां पर कैलकुलेट कर लिया। अब हम लोग नेक्स्ट जो डिस्कस करते हैं वन इंपॉर्टेंट टर्म दैट इज फेरेंटी इफेक्ट। तो इस न्यूमेरिकल क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमें मिल चुका है। नेक्स्ट लेट अस डिस्कस फेरेंटी इफेक्ट। So Ferranti effect, one of the important topic of transmission lines, and again it can be asked in your semester examinations also, or if you are facing some interview, then interviewers can ask you what is Ferranti effect, and there you have to give the explanation, the correct reason of Ferranti effect. तो हम लोग यहाँ पर Ferranti effect को समझते हैं कि Ferranti effect क्या है। तो देखिए What is Ferranti effect? Ferranti effect. तो Ferranti effect कहता है कि if when a long transmission line is operating under no load condition, when a long transmission line is operating under no load condition, or light load condition, then receiving in voltage end voltage becomes greater than
सेंडिंग एंड वोल्टेज, यानी ये कह रहा कि अगर ट्रांसमिशन लाइन को ये कह रहा है कि अगर ट्रांसमिशन लाइन को इफ ए लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन इज ऑपरेटिंग अंडर नो लोड कंडीशन और लाइट लोड कंडीशन, यानी एक लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन है जिसके की जिस लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन को नो लोड कंडीशन पर ऑपरेट करा रहे हैं या फिर लाइट लोड कंडीशन पर ऑपरेट करा रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि रिसीविंग एंड वोल्टेज हमारा सेंडिंग एंड वोल्टेज से ज्यादा हो जाता है। इसका मतलब अगर हमारा सेंडिंग एंड वोल्टेज 132 kV है, हो सकता है रिसीविंग एंड वोल्टेज हमें 140 kV मिल रहा है, 150 किलो वोल्ट मिल रहा है। दैट फेनोमेना, दैट इफेक्ट इज कॉल्ड फेरेंटी इफेक्ट। तो इस फेरेंटी इफेक्ट का 3 अलग अलग एक्सप्लेनेशन है। हम पहला एक्सप्लेनेशन लिख रहे हैं फेरेंटी इफेक्ट का। हम लोग क्या करते हैं, कंसीडर कर लेते हैं कि जो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन का पैरामीटर्स है, उस पैरामीटर्स को इंस्टेड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड हम लंप्ड पैरामीटर कंसीडर कर लेते हैं। तो जब हम लोग लंप्ड पैरामीटर को इसे कंसीडर कर लेंगे, दिस विल बी आर एक्स, और यहां पर एक कैपेसिटर को सोर्स एंड पर हम लोग मान लेते हैं जो चार्जिंग कैपेसिटर है। यहां पर ये है हमारा रिसीविंग इन वोल्टेज VR, और यहां पर रिसीविंग इन करंट क्या है, 0 है। यहां पर तो ये क्या होगा, चार्जिंग करंट ये क्या आएगा IC, ये R प्लस JX, ये हमारा VS। तो यहां पर देखिए, अब यहां पर जो चार्जिंग करंट IC है, यही चार्जिंग करंट IC इससे भी होकर फ्लो कर रहा है। क्लियर? तो अब देखिए यहां पर अगर फेजर डायग्राम हम ड्रॉ करें, सपोज दिस इज द रिसीविंग इन वोल्टेज VR, ये रिसीविंग इन वोल्टेज अगर हमारा VR है, तो इस रिसीविंग इन वोल्टेज से जो ये पार्ट है हमारा 1/j⍵c का, तो इसको हमारा क्या होगा हियर, अगर हम IC कैलकुलेट करें तो IC विल बी VR इनटू j⍵c, यानी ये कैपेसिटर के थ्रू, प्योर कैपेसिटर के थ्रू करंट फ्लो करेगा। यहां का पोटेंशियल क्या है, VR है, तो ये करंट क्या होगा, एग्जैक्टली 90 डिग्री से लीड करेगा इस VR से। तो एग्जैक्टली जब 90 डिग्री लीड करेगा तो ये करंट हुआ हमारा IC, दिस करंट इज IC। तो जब ये करंट IC हमें मिल चुका है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम VS के लिए फेजर डायग्राम ड्रॉ करना है। तो VS विल बी इक्वल टू व्हाट, VS इज इक्वल टू VR प्लस IC इंटू R प्लस JX, यानी IC इंटू R, यानी कि IC के डायरेक्शन में रेजिस्टिव ड्रॉप हमें मिल रहा है, ये रेजिस्टिव ड्रॉप है हमारा IC इंटू R प्लस IC इंटू JX, तो IC इंटू JX यानी ये हुआ JIC इंटू X। तो ये जो रिजल्टेंट वोल्टेज हमें मिल रहा है, दिस रिजल्टेंट वोल्टेज इज सेंडिंग इन वोल्टेज VS। तो अगर हम इसका मैग्नीट्यूड देखें तो क्या मिल रहा है, VS इज लेस देन VR, VS इज कमिंग लेस देन VR, दिस इफेक्ट इज कॉल्ड फेरेंटी इफेक्ट। तो ये फेरेंटी इफेक्ट का पहला एक्सप्लेनेशन हुआ। हम अभी 2 एक्सप्लेनेशन और फेरेंटी इफेक्ट का देखते हैं। सेकेंड एक्सप्लेनेशन अगर हम देखें फेरेंटी इफेक्ट का, तो हम लोग क्या जानते हैं, वोल्टेज का जो फॉर्मूला होता है V, जो अभी हमने लिखा था VR प्लस IRZC डिवाइडेड बाय 2 इंटू e टू दी पावर गामा x, दूसरा प्लस VR माइनस IRZC डिवाइडेड बाय 2 इंटू e टू दी पावर माइनस गामा x। तो ये हमें 2 टर्म मिला था, रिफ्लेक्टेड वोल्टेज और ये इंसिडेंट वोल्टेज और रिफ्लेक्टेड वोल्टेज। तो जब हम x इक्वल टू L पुट करते हैं, जब आप x इक्वल टू L पुट कर रहे हो और IR इज इक्वल टू 0 है, तो IR को जब आप 0 करोगे क्या होगा, ये सिंपली मिलेगा VR डिवाइडेड बाय 2 इंटू e टू दी पावर गामा x, x के जगह L पुट कर दीजिए प्लस VR बाय 2 इंटू e टू दी पावर गामा L। तो x अगर 0 रहता तो VR बाय 2 प्लस VR बाय 2 ये आपको 1 मिल जाता, VR मिल जाता। लेकिन अब यहां पर क्या है, L को इंक्रीज करना स्टार्ट करेंगे। जब L को इंक्रीज करेंगे तो पहला टर्म क्या होगा, इंक्रीज करेगा, दूसरा टर्म डिक्रीज करेगा, पहला टर्म इंक्रीज करेगा और दूसरा टर्म डिक्रीज करेगा। तो जो फाइनल आप इसे कैलकुलेट करेंगे, ये फाइनल जो आपको मिलेगा टर्म, यही VS का टर्म होगा, और ये VS आपको क्या मिलेगा यहां से, दिस VS विल बी लेस देन VR, दिस VS विल बी लेस देन VR, ये आपको न्यूमेरिकल
क्वेश्चन में भी मिला था. सो दैट इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ फेरेंटी इफेक्ट. अब हम लोग थर्ड एक्सप्लेनेशन को देखते हैं. तीसरा एक्सप्लेनेशन देखिए क्या कहता है. थर्ड एक्सप्लेनेशन इज बेस्ड ऑन रिएक्टिव पावर. और बेसिकली रिएक्टिव पावर का दो चीज होता है, या तो रिएक्टिव पावर कहीं पर जनरेट होता है या फिर रिएक्टिव पावर कंज्यूम होता है. तो जब हम कैपेसिटर की बात करते हैं, कैपेसिटर इज द सोर्स ऑफ रिएक्टिव पावर एंड इंडक्टर इज द सिंक फॉर रिएक्टिव पावर. यानी इंडक्टर एब्जॉर्ब्स रिएक्टिव पावर एंड कैपेसिटर जनरेट्स रिएक्टिव पावर, कैपेसिटर डिलीवर्स रिएक्टिव पावर. So in the case of light load condition, the effect of charging capacitance is much more higher than the reactance due to line inductance. यानी कि capacitive reactance is much more higher than inductive reactance in the case of open circuit और light load condition. तो जब हमारा कैपेसिटर के कारण कैपेसिटर का पार्ट डोमिनेट कर चुका है, तो कैपेसिटर का काम क्या है, कैपेसिटर विल जनरेट रिएक्टिव पावर. तो वहां पर क्या होगा, रिएक्टिव पावर जो जनरेट करने वाला कैपेसिटर है वो अधिक है, सो मोर रिएक्टिव पावर विल बी जनरेटेड. तो किसी पॉइंट पर अगर रिएक्टिव पावर जनरेटेड इज ग्रेटर देन रिएक्टिव पावर एब्जॉर्ब, तो एट दैट पॉइंट द पोटेंशियल इंक्रीजेज, एट दैट पॉइंट वोल्टेज इंक्रीजेज. तो इसीलिए वहां पर वोल्टेज इंक्रीज कर जाता है. और दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ सर्ज इंपीडेंस लोडिंग. जब एग्जैक्टली सर्ज इंपीडेंस लोड के बराबर कनेक्ट किया जाता है, तो उस समय आपका रिएक्टिव पावर एब्जॉर्ब और रिएक्टिव पावर जनरेटेड दोनों इक्वल होता है. एट दैट टाइम द वोल्टेज इन द ट्रांसमिशन लाइन विल बी इक्वल थ्रू आउट द लाइन. बट व्हेन द लोड इज लेस देन सर्ज इंपीडेंस लोडिंग, तो वो आपका लाइट लोड कंडीशन हो जाता है या फिर नो लोड कंडीशन हो जाता है. एट दैट टाइम योर voltage becomes greater than the sending in voltage. The receiving in voltage will become greater than receiving in voltage. So today second unit, that is the transmission and distribution of first part has been completed. So in the next video lecture I will start third unit.